Good morning, students. Welcome to the seventh session of Vision for 2020 by Dr. APJ Abdul Kalam. In our previous video, we did that India has entered the 10th five-year plan with a focus on all-round development. And this period, the 10th plan, is a very vital period and it has to lay the foundation for the journey of transformation by initiating mission projects that will bring economic strength to the nation. And in order to realize a developed India by 2020, five key areas have been identified for an integrated action. These five areas are: first is agriculture and food processing, second, education and healthcare, third, infrastructural development with a focus on reliable and quality electric power, and fourth, information and communication technology, which is our core competency, and fifth, critical technologies and strategic industries. After describing five key areas which have been identified for an integrated action and which are closely interrelated and which are expected to lead to the national food and economic security, Dr. Kalam says that we, the Indians, are rich in natural and human resources which we should exploit. We need young, creative, and quality leaders who can inspire the young minds and realize the visions like developed India. According to Dr. Kalam, the nation's strengths predominantly reside in its natural and human resources which we should leverage. The nation's strength, किसी राष्ट्र की शक्ति predominantly, mainly, मुख्यतः reside, निवास करती है in its natural and human resources, प्राकृतिक और मानव resources संसाधनों में, which we should leverage. Leverage means उसे बढ़ाना या सपोर्ट करना या उसका लाभ उठाना. राष्ट्र की शक्ति मुख्य रूप से नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज में निवास करती है, उनमें निहित रहती है और हमें इसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसी को हमें और ज़्यादा ताकत देनी चाहिए. अर्थात राष्ट्र की शक्ति प्रभावी रूप से इसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों में निहित होती है, जिसे हमें उत्तोलक शक्ति प्रदान करनी चाहिए. Human resources, particularly with large young population, is the unique core strength of the nation. Human resources, मानवीय संसाधन, particularly with large young population, और विशेष तौर पर young population, large young population, विशाल युवा जनसंख्या, is the यूनिक कोर स्ट्रेंथ. यूनिक मीन्स अद्वितीय, बेजोड़, अपनी तरह का, अनूठा. कोर स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्र की मुख्य ताकत है, मुख्य शक्ति है. मानव संसाधन, विशेषकर विशाल युवा जनसंख्या राष्ट्र की अद्भुत मूल शक्ति है. There are 700 million people below 35 years of age in the population of a billion people. In the population of a billion people, 1 अरब लोगों की जनसंख्या वाले देश में there are 700 million people, 700 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से भी कम है. हम भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब है और इसमें से भी 700 मिलियन लोग 35 वर्ष से भी कम आयु के हैं, यानी कि हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. The nation needs young leaders who can command the change for transformation of India into a developed nation embedded with a knowledge society from now to 20 years.
द नेशन नीड्स यंग लीडर्स। राष्ट्र को युवा नेताओं की आवश्यकता है। हु कैन कमांड, जो कि निर्देश दे सके, देख रेख कर सके, किसके लिए? द चेंज, उस परिवर्तन के लिए निर्देश दे सके, उस परिवर्तन का दायित्व ले सके। परिवर्तन किसके लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन। भारत को एक विकसित राष्ट्र में, भारत का परिवर्तन एक विकसित राष्ट्र के रूप में करने वाला जो चेंज है, उस चेंज को कमांड कर सके, ऐसे यंग लीडर्स की आवश्यकता है। और वो राष्ट्र भी कैसा होगा? एम्बेडेड, एम्बेडेड मीन्स अटैच्ड विद अ नॉलेज सोसाइटी फ्रॉम नाउ टू 20 ईयर्स। एक ऐसा विकसित राष्ट्र जो कि नॉलेज सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, या नॉलेज सोसाइटी जिसमें निहित होगी फ्रॉम नाउ टू 20 ईयर्स, अब से लेकर 20 वर्ष के बाद तक भारत एक नॉलेज सोसाइटी में परिवर्तित हो चुका होगा। ऐसे परिवर्तन को कमांड देने वाले युवा नेताओं की हमें आवश्यकता है। The nation needs young leaders who can command the change for transformation of India into a developed nation embedded with a knowledge society from now to 20 years. राष्ट्र को युवा नेतृत्व की आवश्यकता है जो भारत के विकसित राष्ट्र में परिवर्तन की दिशा को कमांड कर सके, उसका नेतृत्व कर सके, उसे सही दिशा दे सके, जो कि अब से 20 वर्ष बाद नॉलेज सोसाइटी के रूप में अंतस्थापित होने वाला है। Quality leaders are like magnets that will attract the best persons to build a team for the organization and give inspiring leadership even during failure of missions, as they are not afraid of risks. क्वालिटी लीडर्स, अच्छी गुणवत्ता वाले जो नेता होते हैं, उत्कृष्ट जो नेता होते हैं, दे आर लाइक मैग्नेट्स, वो चुंबक की भांति होते हैं। और वो क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट द बेस्ट पर्सन्स, वो सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। किस काम के लिए? टू बिल्ड अ टीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए एक टीम का निर्माण करने वाले या निर्माण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्सन्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्वालिटी लीडर्स। और क्या करते हैं? गिव इंस्पायरिंग लीडरशिप, और वो प्रेरणादायी लीडरशिप, नेतृत्व प्रदान करते हैं इवन ड्यूरिंग फेलियर्स ऑफ मिशंस, यहाँ तक कि ड्यूरिंग फेलियर ऑफ मिशंस, मिशंस की, अपने लक्ष्य की असफलता के दौरान भी प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करते हैं ऐसे लीडर्स, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क, क्योंकि वो खतरों से डरते नहीं हैं। यानी उत्कृष्ट नेतृत्व चुंबक की भांति होता है जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित कर संगठन के लिए एक अच्छी टीम तैयार करते हैं और लक्ष्यों के असफल होने पर भी प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि वे जोखिम लेने से, रिस्क लेने से, खतरा उठाने से डरते नहीं हैं। द क्रिएटर्स ऑफ विजन्स इग्नाइट द यंग माइंड इन पर्टिकुलर। क्रिएटर्स, निर्माता ऑफ विजन, विजन के क्रिएटर्स, विजन्स के निर्माता। इग्नाइट, इग्नाइट मीन्स उत्तेजित करना या प्रज्वलित करना। द यंग माइंड इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर युवा मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। द क्रिएटर्स ऑफ विजन, विजन के निर्माता विशेष तौर पर युवा मस्तिष्क को, युवा दिमाग को इग्नाइट करते हैं, उन्हें उत्तेजित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। What are the qualities of such a creative leader? ऐसे क्रिएटिव लीडर, सृजनात्मक, रचनात्मक नेता, लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं? ऐसे कौन से गुण होते हैं जो किसी लीडर को क्रिएटिव बनाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं, सृजनात्मक बनाते हैं? He or she exercises changes in the traditional role from commander to coach, from manager to mentor,
from director to delegator, and from one who demands respect to one who facilitates self respect. ऐसे लीडर्स क्या करते हैं? दे एक्सरसाइज चेंजेस, वो परिवर्तन करते हैं। किस चीज़ में परिवर्तन? इन द ट्रेडिशनल रोल, जो एक लीडर का ट्रेडिशनल रोल होता है उसमें परिवर्तन करते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत रोल जो एक लीडर का माना जाता है उसमें परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं और कहाँ से परिवर्तन करते हैं? फ्रॉम कमांडर टू कोच, कमांडर की भूमिका से परिवर्तन लाके कोच बनते हैं वो लोग। फ्रॉम मैनेजर टू मेंटोर, वो मैनेजर नहीं मेंटोर बनते हैं। फ्रॉम डायरेक्टर टू डेलीगेटर, वो डायरेक्टर नहीं बल्कि डेलीगेटर बनते हैं। वो रोल इस तरह प्रकार से चेंज कर देते हैं। एंड फ्रॉम वन हु डिमांड्स रिस्पेक्ट टू वन हु फैसिलिटेट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक ऐसा नेता जो रिस्पेक्ट मांगता है, रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट की इच्छा रखता है, उसकी बजाय वो क्या चेंज लाते हैं इस रोल में? वो फैसिलिटेट्स द सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आत्मसम्मान की भावना को फैसिलिटेट करे। अर्थात ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एक लीडर का हम देखते हैं कि जो परंपरागत रोल होता है वो होता है कि वो कमांडर होता है, मीन्स निर्देश देने वाला होता है। वो मैनेजर होता है, प्रबंधन करने वाला होता है। वो डायरेक्टर होता है, दिशा निर्देश देने वाला। एंड द वन हु डिमांड्स रिस्पेक्ट, और जो कि सम्मान मांगता है, सम्मान पाने की इच्छा रखता है। ट्रेडिशनली एक लीडर ऐसा होता है। लेकिन जिन हम क्रिएटिव लीडर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, डॉक्टर कलाम जिन क्रिएटिव लीडर की बात कर रहे हैं उनमें वो ऐसी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, ऐसी क्वालिटी का जिक्र कर रहे हैं कि जो ये जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं, एक कमांडर होने का, एक मैनेजर होने का, डायरेक्टर होने का या रिस्पेक्ट चाहने वाला होने का, इस रोल को चेंज करके, इस भूमिका को चेंज करके वो क्या परिवर्तन लाते हैं? कमांडर से वो कोच बन जाते हैं। कोच मीन्स सिखाने वाला, प्रशिक्षक, शिक्षा देने वाला। एंड फ्रॉम मैनेजर टू मेंटोर, मेंटोर मीन्स अनुभवी परामर्शदाता, वो सलाहकार बन जाते हैं, सलाहकार बनने का प्रयास करते हैं। मैनेजर नहीं, सलाहकार बनने का प्रयास करते हैं। और डायरेक्टर की बजाय डेलीगेटर, डायरेक्टर मतलब किसी संस्था का या किसी संगठन का संचालक ना बनकर डेलीगेटर बन जाते हैं। मीन्स अपनी शक्तियों को अपने से अधीन को सौंप देते हैं, सारी शक्तियां अपने अंदर ही निहित न करके अपनी शक्तियों को आगे सदस्यों को सौंप देते हैं। एंड फ्रॉम वन हु डिमांड्स रिस्पेक्ट, और ऐसे लीडर्स स्वयं के लिए सम्मान की बजाय एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान की सुरक्षा हो सके। इस प्रकार के क्रियात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक नेतृत्व के गुण क्या हैं? ऐसे जो लीडर्स होते हैं वे परंपरागत भूमिका में परिवर्तन लाते हैं। और परिवर्तन क्या लाते हैं? कि कमांडर से कोच, मैनेजर से मेंटोर, डायरेक्टर से डेलीगेटर में भूमिका को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और सम्मान मांगने की बजाय आत्मसम्मान प्राप्त करने का और दूसरों को आत्मसम्मान देने का प्रयास करते हैं। The higher the proportion of creative leaders in a nation, the higher the potential of success of visions like developed India. The higher the proportion of creative leaders in a nation. Proportion अनुपात, the higher जितना अधिक अनुपात होगा किसका? ऑफ क्रिएटिव लीडर्स, कि इन क्रिएटिव लीडर्स का, इन सृजनात्मक रचनात्मक लीडर्स का जितना ज़्यादा अनुपात होगा किसी राष्ट्र में, द हायर द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, उतना ही अधिक क्षमता होगी, पोटेंशियल किस चीज़ की क्षमता? सक्सेस, सफलता की क्षमता होगी। और सफल किसको होना है? विजन्स लाइक डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड इंडिया टाइप के जो विजन्स हैं उनकी सफलता की क्षमता उतनी ही अधिक होगी जितना ज़्यादा किसी राष्ट्र में क्रिएटिव लीडर्स का अनुपात रहेगा।
यानी किसी राष्ट्र में जितने ज़्यादा सृजनात्मक क्रिएटिव लीडर्स होंगे, पॉपुलेशन के अनुपात में, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के अनुपात में जितने ज़्यादा क्रिएटिव लीडर्स होंगे, द हायर द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, सफलता की क्षमता होगी। किसकी सफलता? ऑफ विजन्स लाइक डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का जो विजन है, इस प्रकार के विजन्स की सफलता की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी क्रिएटिव नेतृत्व का एक राष्ट्र में जितना अधिक अनुपात होगा, उतनी ही विकसित भारत बनने के विजन की सफलता की संभावना अधिक होगी।